یسوع مسیح نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں، یہ جانتے نہیں کیا کرتے ہیں۔ وہ لوگ خداوند یسوع مسیح کو نہیں جانتے تھے، جو لوگ خداوند یسوع مسیح پر اس کو مار رہے تھے، اس کے منہ پر تھوک رہے تھے اور اس کے کپڑے پھاڑ رہے تھے اور اس کو لے کر جا رہے تھے، ہم یہ سب کچھ نہیں بیان کر سکتے، میرا دل اس چیز کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ مجھے یہ موقع ملا ہے کہ میں خداوند کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں آپ لوگوں سے بیان کروں۔ خداوند یسوع مسیح کو جب سولی پہ لٹکایا گیا تو خداوند یسوع مسیح اپنے لوگوں کو دیکھ رہا تھا، لیکن وہ کچھ بھی کہہ نہیں سک رہا تھا۔ اس نے ہر چیز برداشت کی میرے لیے اور آپ کے لیے، اس نے ہر چیز کو سہا، اس کے ہاتھوں پر کیل ٹھکوائے گئے، اس نے سب کچھ سہا، اس نے ایک بھی اپنے زبان سے لفظ سے اپنی کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اس نے یہی کہا ہے باپ، اس نے دعا کی ان لوگوں کے لیے، اس نے کچھ نہیں کہا، اس نے صرف کہا ہے باپ ان کو معاف کر۔ آج وہ سکھاتا ہے مجھے اور آپ کو بھی کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں۔ ہم اپنے دلوں میں باتیں رکھتے ہیں، اپنے دل میں انا رکھتے ہیں، لیکن ہمیں آج اپنے یسوع مسیح پر نگاہیں لگانی ہے، ہمیں اسے دیکھنا ہے، ہمیں اسے فالو کرنا ہے کہ جیسے وہ معاف کرتا ہے ہمیں بھی اپنے دل سے ہر چیز نکال کر ایک دوسرے کو معافی کرنا ہے اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے۔ جیسے اس نے کہا جیسے آسمان پر دعا کی، جیسے اس نے ہمارے لیے دعا کری، اسی طرح ہمیں بھی ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے کو معاف کریں۔ وہ ہمیں سکھاتا ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے کے لیے دعا کرو اور ایک دوسرے کو معاف کرو۔ آج ہم رشتہ داروں میں، اپنے لوگوں میں ہم ایک دوسرے کے لیے دیکھیں کتنی انا رکھتے ہیں، ہم اپنے اندر کتنا غرور رکھتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ اس نے اپنے منہ سے وہ الفاظ صرف سولی پر یہی نکالے کہ اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ ہاللیلویہ، ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ اس نے ہمارے لیے سہا، وہ ہمیں رہا کرنا چاہتا تھا، وہ ہمیں اس دکھوں سے باہر نکالنا چاہتا تھا۔ ہم دکھوں میں تھے، ہم تکلیفوں میں تھے، لیکن باپ ایسے نہیں دیکھ سکتا تھا، اسی لیے اس نے یسوع کو بھیجا ہماری رہائی کے لیے، ہماری نجات کے لیے، تاکہ ہم ان چیزوں سے نکل کر ہماری ایک پہچان ہو، اور وہ پہچان ہماری یسوع نام میں ہے، وہ پہچان ہماری یسوع نام ہے جو ہمارے کرسچن ہے۔ آج جو ہمیں ترجیح دی گئی ہے، چاہے شاہی کہنوں کا فرقہ کہا گیا ہے، وہ اسی لیے ہے کیونکہ اس نے معاف کیا، اور آج ہمیں بھی یہی بات سکھاتا ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے کو معاف کریں۔ آمین۔ God bless you all of you۔ حمد مسیح کی دعوتوں روح سے بڑھتے جاؤ تم، حمد مسیح کی دعوتوں روح سے بڑھتے جاؤ تم، ابدی جیون پاؤ تم، قوت سے بڑھ جاؤ تم، بندھن ٹوٹیں گے، جوڑے بھی ٹوٹیں گے، او بندھن ٹوٹیں گے، جوڑے بھی ٹوٹیں گے، بندھن ٹوٹیں گے، جوڑے بھی ٹوٹیں گے۔ آئیں گی اور خدا کے کلام کو دوسرے کلمے کو بیان کریں گی۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے دیکھیں گے لوکا کی انجیل اس کا 23 باب اور اس کی جو ہے 43 آیت کو آج میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس نے، کس نے؟ یسوع نے، نجات دہندے نے، بچانے والا، چھڑانے والا۔ اس نے کہا اس ڈاکو سے کہ میں تم سے، اس ڈاکو سے جس نے آن دا اسپاٹ جب خداوند کے اس سارے ماجرے کو، یسوع کے اس سارے ماجرے کو دیکھا، جب صلیب پہ لٹکایا گیا، اس سارے جو ماجرے کو دیکھا، اور اس نے اپنے ساتھ کو، ایک نے انکار کیا اور دوسرے نے کہا کہ ہم تو اپنی بدی کیے ہوئے کا پا رہے ہیں، پر اس نے تو کوئی برا کام نہیں کیا۔ اور تب خدا نے اس سے کہا، پھر اس نے خدا سے التجا کی
کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا. اور پھر یسوع نے اس نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اس نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ. خدا نے یہ پوری انسانیت کے لیے یہ بات کہہ دی کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی مجھ پہ ایمان لائے گا وہ زندگی کے کسی بھی لمحے میں ہو، میں اس کے ساتھ ہوں. کیونکہ خدا نے انسان کو اس لیے بنایا کہ اسے جانے پہچانے. اس ڈاکو نے اسے جان لیا، خدا کو پہچان لیا، اور اس سے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے یاد رکھنا. اور خدا نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر اس ڈاکو کو آخری وقت میں نجات مل گئی تو ہمیں بھی ملی جائے گی. نہیں، جب آپ خدا کے کلام سے واقف ہو جاتے ہیں، جب خدا کا کلام آپ کے اندر ہے، اور پھر بھی آپ اس بات کو یاد رکھتے ہیں کہ اگر ڈاکو کو آخری لمحات میں نجات مل گئی تو ہمیں بھی مل جائے گی. نہیں، اس کے پاس اور وقت نہ تھا، وہ آخری لمحات میں تھا. کیا خدا ان سے کہتا کہ ٹھیک ہے تو نے مجھے بچا لیا، جا اب جا کے بپتسمہ بھی لے، یہ سارے کام کر تو پھر میں تجھے نجات دوں؟ اس نے خدا کو جانا اور خدا نے اسی لمحہ اسے کہہ دیا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. جیسے خدا کے خادم نے کہا کہ مبارک ہے وہ جس کی خطائیں بخشی گئی. زبور 32 کے اندر جب خدا کے خادم نے پڑھا تو مجھے ایسے لگا کہ یہ تو سیم بات ہوگی جو چیز میں رات کو تیار کری جب میں خدا کے کلام کے ساتھ بات چیت ہم کر رہے تھے آپس میں. تو یہ خدا نے میرے دل میں بات ڈالی کہ جو میرے حکموں پر عمل کرتا ہے، جو میرے ساتھ چلتا ہے، میں اس کی خطاؤں کو اس طرح اس سے دور کر دیتا ہوں جیسے پورب پچھم سے ہے. ویسے ہی اس ڈاکو کی خطاؤں کو بھی جیسے خدا نے پورب کو پچھم سے دور کیا، اسی طرح خدا نے اس کی خطاؤں کو بھی دور کیا. ہم کبھی بھی اس چیز کو ذہن میں نہ لائیں کہ ہم زندگی کے آخری ایام میں خدا کو قبول کریں گے. جب آپ کو پتہ ہے کہ خداوند کتنا ضروری ہے ہماری زندگیوں کے لیے، تو اسی لمحہ آپ کا وہ وقت شروع ہو جاتا ہے. جیسے کہ جب خدا نے بات چیت کر رہا تھا اپنے شاگردوں کے ساتھ تو ان سے ہم کلام ایک مثال دی کہ ایک جو پاکستان تھا اس میں مزدور کچھ صبح کو لگے، کچھ شام کو، کچھ دوپہر کو، پر سب کو برابر کا حصہ ملا، سب کو ایک ایک دینار ملا. اور لوگ کچھ مزدوروں نے اس بات کا شکوہ کیا کہ ہم تو صبح کے لگے، ہم نے سختی سہی، ہم نے دھوپ سہی، ہم نے ہارڈ ورک کیا، ان سے زیادہ ہم نے ٹائم ان سے زیادہ دیا. تو اس نے کہا کہ جو میرا ہے، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کا 20 باب اور اس کی 15 آیت کا میں آخری حصہ پڑھوں گی. کیا مجھے روا نہیں کہ میں اپنے مال سے جو چاہوں وہ میں کروں؟ فردوس کس کا ہے؟ بادشاہت کس کی ہے؟ خداوند کی ہے. جس نے جوانی میں قبول کیا، جس نے بڑھاپے میں قبول کیا، جس نے بچپن ہی سے خداوند کو قبول کیا، سب کا انعام جو ہے، سب کا جو ہمارا ایک سیلری ہے جو ہمیں روحانی طور پہ ملے گی، جو ہمارا محافظہ ہے، وہ خداوند کی بادشاہت ہے، وہ خداوند کی فردوس ہے. کوئی اس بات کے لیے کبھی شکوہ نہ کرے کہ ہم نے اتنی سختی سہی. اور ہم نے بہت سے لوگ، میں نے پاکستان میں یہ بہت بات جو ہے لوگوں سے میں نے سنی ہے اس بات کو. اور پھر ہم دیکھتے ہیں زبور کی کتاب، اس میں لکھا ہوا ہے یوحنا کی انجیل اس کا 14 باب اور اس کے آخری حصے کو میں تلاوت کروں گی. اور خداوند کہتا ہے کہ جہاں میں ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی وہیں رہو. جو خداوند کو جان لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، خداوند چاہتا ہے کہ جہاں میں ہوں وہ بھی میرے ساتھ رہے. جب آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ میرے پاس رہے، چاہے اس کی شادی بھی ہو جائے تب بھی وہ میرے پاس رہے، ہم ہمیشہ یہ چیز چاہتے ہیں تو خداوند بھی چاہتا ہے. بس اپنے آپ کو خداوند کے سامنے پیش کریں. خداوند آپ کو کہتا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں. خدا کی ہر ایک بات سچ ہے. آسمان اور زمین ٹل جائیں گی لیکن خدا کی منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. پر خداوند پھر بھی کہتا ہے کہ اے انسانوں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم آج ہی میرے ساتھ فردوس. جب آپ خداوند کو اپنا لیں گے تو آپ خداوند کے ساتھ فردوس میں حصے دار ہو جائیں گے. خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا بھائی سے بند. خدا کا شکر. ایکسپلین کیا ہے. گاڈ بلیس یو. یہی ہماری آنے والی نسلوں کا آگے وتیرہ ہے جنہوں نے آگے کام کو بڑھانا ہے. جی، یہ لہو ہے میرے لیے، یہ لہو ہے تیرے لیے،
ये लहू है सबके लिए, है बरे का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, बरे का लहू, यीशु का लहू, ये लहू कफारा मेरा, ये लहू सहारा मेरा, ये लहू कफारा मेरा, ये लहू सहारा मेरा, इस लहू से पार लगू, ये लहू किनारा मेरा, इस लहू से पार लगू, ये लहू किनारा मेरा, बरे का लहू, सब बोलिए, यीशु का लहू, फिर बोलेंगे, बरे का लहू, यीशु का लहू। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. इंद्रियास भाई आगे आए आप, आगे आइए, डाल रहे हो खुदावंद की हुजूरी च अगे आके शुक्र करो खुदावंद दा जिसने आज ये दिन हमें बख्शा। दुआ करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। कदूस 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 मेहरबान जिंदा खुदा, अब्दी जिंदा खुदा, हम आपका शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ, आपके जयकार करते हैं इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए जो कि आपने हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि हम मिल बैठ कर आपकी हजूरी में आए। हम आपकी हजूरी में झुकते हैं और आपको सिजदा करते हैं। मेरे जिंदा खुदावन, एक एक जान, एक एक रूह आज के पाक कलाम के वसीला से, आपके नाम के वसीला से सैर हो। मेरे जिंदा खुदावन, मेरे प्यारे यहोवा, हमें आज के पाक कलाम के लिए तैयार कर। मेरे जिंदा खुदावन, आज के पाक कलाम के वसीला से हम हज़ारों बरकतें हासिल करें। मेरे जिंदा खुदावन, एक एक जान, एक एक रूह आज के पाक कलाम के वसीला से निजात पाए। मेरे प्यारे यहोवा, हर एक की मुश्किल परेशानी को तू जानता है। मेरे जिंदा खुदावन, हम पर अपना रहम कर, हम पर अपनी रहमत बरसा। मेरे जिंदा खुदावन, और हमें अपनी कुर्बत अता कर। मेरे प्यारे यहोवा, हमारी गलती खताओं गुनाहों को माफ़ कर। मेरे जिंदा खुदावन, और हमें तौफीक अता फरमा कि हम इसी तरह आपके पाक कलाम में बढ़ते चले जाएं। मेरे जिंदा खुदावन, हम पर अपना रहम कर। ये सब कुछ मांग लेते हो पाते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बात है कि खुदा ने जो हमें दिलेरी का रूह दिया है, जब आगे कोई आकर खुदा की शुक्रगुजारी करता है, ऐसी सीने में मोहब्बत और बढ़ जाती है। आज मैं इस लायक हुआ कि खुदा के हुजूर में आकर मैं कुछ बोल सका। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो तैयार रहा करें, किसी को ही मैं कह सकता हूँ कि आओ कि आगे दुआ करो, ठीक है। सो घर में जब आते हो खुदावंद के घर में तैयार हो के आना है किसी वक्त भी। अब ये परफॉर्मेंस नहीं, यहाँ पर हम खुदावंद की हुजूरी को एक जान और एक रूह होकर खुदावंद की हुजूरी को उतारा करेंगे। हालेलुया। तद ही काम बनना है, परफॉर्मेंस ना काम नहीं बनना है काम एक रूह एक जान। आमीन। अपनी प्यारी बहन शमीम को दावत दूंगा, प्लीज सामने आइए और मोहब्बत भरी बातें हमारे साथ करें जो यीशु ने की अपनी माँ से। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। मसीह में आप सबको सलाम। मैं चाहूंगी पास आप मेरे साथ गाड़ी निकला इमोशनल मोहब्बत वाली बातें करनी है इमोशनली। पढ़ने में थोड़ी हेल्प करते हैं। अच्छा, पढ़ने यूहन्ना की इंजील उसका 19 बाब उसकी 26 आयत। यूहन्ना 19 बाब और उसकी आयत नंबर 26 में खुदा के कलाम में यूं लिखा है 26, 27, 28। जी ओके। 19 और 24 में यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है।
और उसी वक्त वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। आमीन। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद हमें बार बार मौके बख्शता है। ये माँ और बेटे की कहानी है कि माँ अपने बेटे को कितना प्यार करती थी, कितना प्यार करती थी। जिसका बेटा सलीब पर था, कांटों का ताज उसके सर पर रखा, पसली में नेजा खाया, हाथ पांव पे कील ठुकवाए, लेकिन एक माँ की मोहब्बत थी। कैसे वो देख रही है लेकिन कर कुछ नहीं सकती, बोल नहीं सकती, तड़प रही है। उसकी सलीब को पकड़ा हुआ है, उसके पाँव को पकड़ा हुआ है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। आज हमारी औलाद है, हमारे बच्चे, हमारे बच्चों को कुछ हो जाए, हमारा भी वही दिल है। आपकी बेटी को कुछ हो जाए, आपके बेटे को कुछ हो जाए, तो क्या माँ बर्दाश्त कर सकेगी? क्योंकि माँ अपने बच्चों से मोहब्बत रखती है। इसी तरह खुदावन ने हमसे भी मोहब्बत रखी और माँ ने अपने बेटे से मोहब्बत रखी। उसने भी एक जन्म दिया था कि उसने सब कुछ क्या कहा, सहा उसने, लेकिन वो बात नहीं कर सकती थी, कुछ बोलती नहीं थी, क्योंकि उसका बेटा एक मोहब्बत की खातिर सलीब पर चढ़ा था। और वो लफाज मेरे और आपके लिए है कि खुदावन हमें भी मोहब्बत करता है, चाहे हम किसी तरह के भी हो। हम इस दुनिया में अच्छे नहीं हैं, हमारे में मोहब्बत नहीं है, बहन भाइयों में मोहब्बत नहीं है, लेकिन खुदावन फिर भी हमें एक सबक देता है कि एक दूसरे से क्या करो, मोहब्बत करो। ये उसने हमारे साथ वादा किया, हमें मैसेज दिया है कि एक दूसरे से मोहब्बत करो। उसकी माँ कितनी तड़प रही थी, कितना कुछ हो रहा था, जान भी दी उसने, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। क्यों नहीं कर सकती? उसके बस की बात ही नहीं थी कोई कि मैं अपने बेटे को इन जुल्मों से छुड़ा सकूं, जालिमों से। कुछ नहीं कर सकती थी। और हमारे बच्चे को कुछ हो जाए, हम इतने इतने बड़े डॉक्टरों के पास लेके जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, हमारा दिल इतना परेशान होता है, हम दुखी हो जाते हैं। बच्चों से ज्यादा हम दुखी हो जाते हैं, माँ हो जाती है, क्योंकि उसने जन्म दिया होता है। इसी तरह वो भी एक माँ थी जिसने जन्म दिया था अपने बेटे को। उसका भी हमारी तरह ही दिल था, एक हमारा भी वैसे ही दिल है। हम अपने बच्चों की जुदाई कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम बच्चों को मरने से कभी नहीं देख सकते। पहले बोलते हैं हम मर जाए फिर हमारे बच्चे को कुछ हो, ऐसा ही है। और खुदावन ने, बाप ने कितनी तफीक दी उस औरत को, जब यीशु मसीह सलीब पर चढ़ा हुआ लटका हुआ था तो उसकी माँ सामने देख रही थी, और जिससे वो मोहब्बत करता था वो शागिर्द से खड़ा था, वो भी खड़ा था। खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्द को भी देखा, माँ को भी देखा, और उस शागिर्द से कहा ये तेरी माँ है आज से। पहले नहीं थी, आज से, क्योंकि उसको पता था मैंने मर जाना, मैंने जान दी दी है हमारे लिए, आपके लिए। और माँ से कहा ये तेरा बेटा है। इस शागिर्द से कहा ये तेरी माँ है, इसको अपने घर में ले जा। और शागिर्द ने क्या किया, वो अपने घर में ले गया। कितनी तकलीफ की बात है, कितने दुख की बात है कि उसकी माँ कुछ कर नहीं सकती थी। और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमें ये मैसेज दिया मोहब्बत का। जैसे माँ बेटे में मोहब्बत थी, इसी तरह हमारे लिए ये मैसेज है कि हम भी एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले। मसीह में क्या है, बहन भाई है, तो हमें भी एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए, उसके हुक्मों को मानना चाहिए। मसीह ने तो कोई गुनाह भी नहीं किया था, उसके अंदर तो बिल्कुल गुनाह है ही नहीं था, वो पाक था, वो पाक पवित्र था, लेकिन उसने पूरी रास्तबाजी को क्या किया, पूरा किया। उसने जान दी हमारी मोहब्बत के लिए। उसकी माँ तो है ही थी, लेकिन मेरे और आपके लिए उसने जान दी थी, मोहब्बत ही करता। और ये हमें आज का मैसेज है कि हमें भी एक दूसरे से क्या करनी चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए।
अपने दिलों में कोई बात ना रखे। अगर कोई ऐसा करता भी है तो अपनी मोहब्बत दिखाए, क्योंकि हम मसीह हैं, हम पाक हैं। उसकी नजरों में, मसीह की नजरों में हम पाक हैं, हमारे दिल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम खुदा के लोग हैं। तो ये आज का मैसेज जो खुदावन ने हमें दिया, हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। जिस तरह हमारे खुदावन ने हमसे मोहब्बत की है, हम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखें, अपने बच्चों से मोहब्बत रखें, बच्चे भी हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज करें, मोहब्बत करें, और खुदावन आपको कसरत से बरकत दे। गॉड ब्लेस। और मैं कहना कलाम च लिखा सारे नबी हो हैं ओ सारे तैयार रहा करो, किसी वक्त भी किसी को कह सकते कि भाई उठो, खुदावंद दे जलाल इस्तेमाल हो, खर्च हो। आमीन। क्यों ऐसा कुछ क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है यीशु उतरा है यहाँ, हम गाएंगे हालेलुया। यीशु उतरा है यहाँ, हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ, हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे। गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे, गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे, उसकी हजूरी में गाते जाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ, हमें यीशु की मोहब्बत से कौन जुदा करेगा? बोलिए, हमें यीशु की मोहब्बत से कौन जुदा करेगा? ओ मौत की आँखी से गुजर, ना मैं किसी बला से डरूंगा। ओ मौत की बाकी से गुजर, ना मैं किसी बला से जीतेंगे 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 जीतेंगे, हम जीत जाएंगे, जीतेंगे जीतेंगे हम जीत जाएंगे, उसकी हजूरी में करते जाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ, हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ, हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये कलमा हम अपने प्यारे भाई वसीम के साथ मिलकर बोलेंगे। सो गॉड ब्लेस यू, प्लीज वेलकम। आप सबके सामने मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 27 बाब उसकी 45 और 46 आयत। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज़ से चलाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अगर हम इस कलमे को देखते हैं तो यहाँ पर दो चीज़ें बहुत वाज़ह होती हैं। पहला तारीकी है, और दूसरा कि खुदावन यीशु मसीह को छोड़ दिया। अब जब हम तारीकी की बात करते हैं तो बहुत से ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी में हमें नज़र आते हैं जो कहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। हो सकता है कि तब चांद ग्रहण लग गया हो, या हो सकता है कि बहुत से यहूदी जो थे वो ये कहते थे कि धूल और गर्द का बादल उठा और उसने सूरज को छुपा लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम कलाम मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो हमें बहुत सी जगहों पे नज़र आता है कि खुदा ने कैसे सूरज को छुपा दिया या कैसे सूरज को पीछे खींच लिया। जब बनी इसराइल पर आफतें आईं तो तब भी खुदा ने जो सूरज को छुपा दिया था। उसके बाद अगर हम देखें, एक हवाला मैं आपके सामने और पढ़ूंगा जिसमें जिक्र किया गया है कि कैसे अंधेरा छा गया था। उसमें मुकाशफा 6 बाब उसका 17 और 12 से 7 आयत तक, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, मैं थोड़ा शॉर्ट करूंगा क्योंकि टाइम कम है। उसमें लिखा है कि मैं जब खुदा अदालत करेगा तो तारीकी हो जाएगी,
जब खुदावंद अदालत करने ज़मीन पर आएगा तो तब भी तारीकी छा जाएगी। इसका मतलब है कि जब खुदावंद यीशु मसीह को सूली दी जा रही थी, वो सलीब पे था, तो तब भी अदालत हो रही थी। वो कौन सी अदालत थी? जब हम पुराने अहदनामे में दोबारा पीछे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि कैसे हमारे गुनाहों का कफ़ारा दिया जाता था। जब हारून काहिन हमेशा 2 बरों का कफ़ारा देता था, एक इज्तिमाई कफ़ारा और दूसरा बर्रे के ऊपर लिख कर, गुनाहों को लिख कर उसको बियाबान में छोड़ दिया जाता था। सलीब पर भी ऐसा ही हुआ, खुदावंद यीशु मसीह को तन्हा छोड़ दिया गया। आखिर क्या वजह थी कि जिसको आसमान और ज़मीन का तख्त उसके हवाले कर दिया गया, जिसका नाम सब नामों से आला है, उसको छोड़ दिया गया। उसकी सबसे बड़ी वजह कि हमारे तमाम गुनाहों को खुदावंद यीशु मसीह ने अपने कंधों पर उठा लिया। जब खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को अपने कंधों पर उठाया तो आसमानी बाप कभी भी गुनाह को देख नहीं सकता, और इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह को उस दर्द में, उस कर्ब में, उस तकलीफ में छोड़ दिया गया, सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए। ये वो गुनाह हैं जो हमारे पिछले गुनाह हैं, जो आज हम कर रहे हैं और जो आइंदा ज़िंदगी में करेंगे। उन तमाम गुनाहों की मुआफ़ी खुदावंद यीशु मसीह ने अपने कंधों पर उठा ली। ज़रूरत इस बात की है कि आज हमारी ज़िंदगी में हम क्या चाहते हैं, कि हम उन गुनाहों को जारी रखें या उन गुनाहों को उसी तरह दूर फेंक दें ताकि उस खुदा की नज़र हम पर आ जाए। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर हमारे गुनाहों को अपने कंधों पे उठाया तो खुदा ने मुंह फेर लिया। आप सोचें कि उस तकलीफ़ में, उस दर्द में जब खुदावंद यीशु मसीह मुब्तला था तो क्या आसमान से हज़ार फरिश्ते आकर खुदावंद यीशु मसीह को छुड़ा नहीं सकते थे? क्या खुदा कुछ ऐसा कर सकता था? वो जो नामुमकिनात का खुदा है, जो अव्वल और आखिर है, वो सब कुछ करने में कादिर है, तो क्या वो खुदावंद यीशु मसीह को छुड़ा नहीं सकता था? कुर्बानी ज़रूरी थी क्योंकि ये शरीयत का हिस्सा था, और इस दफ़ा जो कुर्बानी दी जा रही थी वो खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी थी, उसके इकलौते बेटे की कुर्बानी थी। जैसा कि आजमाइश के लिए खुदा ने इब्राहिम से कहा कि जो तुझे सबसे प्यारा है उसकी कुर्बानी दे, और उसका सबसे प्यारा कौन था? उसका बेटा इसहाक। और खुदा ने, अगर हम देखें तो उसी ने भी, वो चाहता तो 10,000 लोगों को इकट्ठा कर लेता, कहता कुर्बान कर दो, चलो सबका कफारा हो जाएगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि खुदा अदल का खुदा है, वो हमेशा इंसाफ करता है। और सबसे बड़ा इंसाफ ये है कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए कुर्बान करने के लिए भेज दिया। आज हमारी ज़िंदगी में हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम भी अपने आप को लायक और वाजिब तौर पर करें, क्योंकि सलीब का पैगाम तो जैसे पालूस रसूल कहता है, मैं आपके सामने एक हवाला ज़रूर पढ़ूंगा। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, करंथियों उसका पहला बाब उसकी 18 है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। तो आज इस बात की ज़रूरत है कि हम उस कुदरत को हासिल करें। मेरे अजीज़ों, आपको भी बहुत दफ़ा ऐसा महसूस होता होगा कि आपको बहुत से लोग नज़रअंदाज करते हैं, बहुत से लोग आपको छोड़ देते हैं आपके कुछ अमल की वजह से। हो सकता है कि आप अपनी नज़र में तो बिल्कुल ठीक हों, लेकिन दूसरों की नज़रों में हम नज़रअंदाज किए जाते हैं, रद्द किए जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आज जिन लोगों ने भी हमें रद्द किया है, हम उन लोगों को माफ़ करें। जिस तरह पहले कलमों में देखा कि क्या बाप उनको माफ़ कर, क्योंकि वो नहीं जानते कि क्या करते हैं। और हमारी भी शख्सियत वैसी ही होनी चाहिए जैसी खुदावंद यीशु मसीह की है। अगर खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर इतने जुल्म बर्दाश्त करने के बाद उन लोगों को माफ़ कर सकता है, तो हम सिर्फ बातें सुनकर लोगों को नज़रअंदाज करते हैं, लोगों से नफ़रत करते हैं, लोगों से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। मैं चाहता हूं कि आज गुड फ्राइडे के दिन हम इस अहद करें कि हम अपने आप को लायक और वाजिब तौर पर खुदावंद के हुज़ूर पेश करें और उन लोगों को मुआफ़ करें जिन्होंने कभी भी आपके साथ बुरा किया है। खुदा हम सबके साथ हो। आमीन।
कुव्वत है तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है तेरी बादशाही का ये कैसा शुर है तू मेरी खुशी है सब गाएंगे तू मेरी खुशी है बोले बोले तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है बोले तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है ओ तेरी बादशाही का ये कैसा शुर है तू मेरी खुशी है तू मेरा मसा है तू मेरी कुव्वत है तू है जिंदा खुदा तू है मेरा खुदा तू है जिंदा खुदा तू है मेरा इब्तिदा इंतहा तू है मेरी वफा इब्तिदा इंतहा तू है मेरी वफा तू मेरी खुशी है तू मेरा मसा है तू मेरी कुव्वत है तू मेरी खुशी है। बेटी ने जो दुआ की है कि खुदा का रूह जुम्बिश कर रहा है रियली जितने भी अब तक कलमे हुए ना सब ने खुदा के रूह की हिदायत से बहुत अच्छा बोला है। सो गॉड ब्लेस यू। अब आपके और हमारे बुजुर्ग आ रहे हैं, ज़रा ध्यान ना अपनी कमरा कस लो। मैं प्यासा हूँ खुदा उनके खादम पास्टर विलियम। गॉड ब्लेस यू सर, प्लीज़ कम। थैंक यू जी, शुक्रिया। सो भी खुदा ते हम सारे बरकत दवे ते टाइम मैं भी इन्ना ही लावांगा, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लगेगा, लेकिन मैं चाहांगा क्योंकि सलीब का एक पैगाम है, सलीब का निशान नहीं गा बल्कि सलीब का पैगाम है। ते उहदे उत्ते एक पैगाम दिता गया है यूहन्ना 19 बाब की 28 आयत कि मैं प्यासा हूं। ते मैं चाहांगा कि मैं उस साथी नूं भी जरूर अगे बुला लवां जिन्हें वाकई मेरे तो ज्यादा प्यास रूहां दी रखी है। मैनू बड़ी चंगी तरह गल याद है, बड़े लोगों नूं सुनीदा सीगा, इदा दोस्ताना रही है। एक दानियल बीए होया है, उसले बीए तलीम होना कोई छोटी जी गल ही सी, बड़ी वड्डी सी, इस करके उसदा नाम ही दानियल बीए पाता सी। भाई उन्हें जदों बुलाउंदे सी ते उहदा खिताब सी दानियल बीए, पर वो बीवी तो बड़ा तंग सी, बड़ा मशहूर खादम ते रूहां दी भी बड़ी तड़प उहदे अंदर। ते वो दसदा है कहंदा जदों मनादी तो वापस आना ते बूहा नहीं खोलना ते कई मौके कंध टप के आना ते जाके उन्हें अगे वो साड़ मार देना, वो तेरा हुण मनादा खत्म होया। मनादी नूं उन्हें की कहना मनादा। ते मैं खुदा दा शुक्र करना है कि खुदा दी खादमा ने मेरे तो ज्यादा रूहां दी प्यास रखी। मेरे नाल मैं चाहुंदा कि मेरा साथी नाल आ जाए, मेरे नाल शाना बशाना खिदमत की। साइकिल घंटा घंटा 2-2 3-3 घंटे चला लेना ते बंदा चला लेंदा, जवानी वक्त सीगा, पर पीछे बैठना काम बड़ा औखा है। इन्नी देर ते बई रूहां दी तड़प रख के नाल जाना। छोटे छोटे बच्चे होंदे सीगे, बच्चे भी बड़े साडे साबर, इन्हां साडी खिदमत दे विच बड़ी मदद की। मैनूं बड़ा चंगी तरह याद है, एक दिन मैं तो सना जा रहे खिदमत नूं, सना बैठी मेरे नाल अगे साइकिल दे ते नेरी बड़ा तूफान झुल पिया। वो जिन्हों कह देंगे वो खूनी नेरी, हालांकि खूनी नहीं होंगी, वो मिट्टी मुट्टी गर्द मिली होंगी है तो वो लाल होई होंगी है। तो मैं ना देख के बच्ची नूं देख के ते मैं पीछे नूं मुड़न लगा ते सना ने हिम्मत मेरी कहंदा अबू उन्हें रीते तूफान सब यसू ने ठल्लने आ, तू सोचने पिछे मुड़ चली। मैं तेरा करके नहीं कोई गल नहीं, तू चल लगी। तो मैं जाके फिर खिदमत की। इस तरह खुदा दी खादमा ने वाकई उत्थे लिखा है मैं प्यासा हाँ, ते ये प्यास
ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕੇ ਬੁਝਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਓ 6 ਬਾਬ ਤੇ 20 ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਬਦਲ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਜਲਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਰੋਮੀਓ 9 ਬਾਬ 21 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੁਮਹਾਰ ਨੇ ਬਰਤਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਬਰਤਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾ ਪਾਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਅਸੂਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਖੁਦਾ ਤਹਮਲ ਕਰਕੇ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਜ਼ਬ ਵਾਸਤੇ ਬਰਤਨ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲਕਿ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੇਖੋ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਸ਼ਮੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਪੀਣ ਦੀ, ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਚਸ਼ਮੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਤੜਪ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਾਦਮਾ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਬੜੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕ ਪਤਨ ਜਾਣਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਦਿਨ ਲਾਉਣੇ, ਬੜੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਰਚ ਦਿਖਾਉਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਾਕ ਪਤਨ ਚਰਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਗੋਚਰੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਾਦਮਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਕਿ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਬਹਿਸ ਨਾ ਬਣੀਏ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਧਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪਿਆਸੇ ਨੇ। ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਖਤ ਪੜੋ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਬਾਪ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਪ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਾਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 21 ਤੇ 22 ਐਚ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝਪਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਅੱਗ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦਾਨੀਏਲ 11 ਬਾਬ 32 ਐਚ 12 ਬਾਬ ਤੇ 3 ਐਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੇਰੇ ਸਾਧਕ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਦ ਝਲਕਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੋਮੀਓ 12 ਬਾਬ 11 ਐਚ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੁਸਤੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਡਾਕੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਬਈ ਨਜਾਤ। ਉਹ ਭਰਾਓ ਅਮਸਾਲ 6 ਬਾਬ ਤੇ 9 ਐਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਾਹਿਲ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁੱਤਿਆ ਰਹਿਣਾ ਈ ਤੂੰ, ਉਹ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਨੀਂਦ ਚੋਂ ਉੱਠਣਾ ਈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨੀਂਦ ਤੇ ਘੋਰ ਝਪਕੀ, ਜ਼ਰਾ ਪੜੇ ਰਹਿਣੇ ਪਰ ਹੱਥ ਹੀ। ਅੱਜ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵਕਤ ਹੀ ਰੱਬ ਮੰਗਦਾ ਹੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਗੇ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਖਿਦਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਾਦਮਤ ਕੋ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੌਰੀ ਜੇ ਟਾਈਮ ਜੇ ਹਾਲੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1-2 ਮਿੰਟ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਐਰਿਕ ਹੈ, ਸਾਲਾਡਨ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਲੈਂਡ। ਵਸੀਮ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ।
2015 ਤੋਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਰਿਹਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਪਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾਦਰੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਈਏ, ਉਹ ਬਰਤਨ ਬਣੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਥੇਰੇ ਸਾਧਕ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਮੀਓ 12:11 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਾਇਓ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਉਹ ਪਿਆਸਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਈਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਾਤਮਾ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਦਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਕਰ ਸਰ। मैं बस कर देती ठीक है। खुदावंद दा शुक्र है कि वाकई भाई साहब ने सही किया कि रूहां बचाइयां। साडा जेड़ी मेरी फैमिली ते मेरे सहुरे दी फैमिली वाकई जट लोग सी ते मैं इन्हां नूं कहना अच्छा दुआ करदे खुदा इन्हां नूं बदलेगा ना। मेरी अम्मी एक दफा इन्हां दे गल पै मैं कहा ये मैनूं कहंदे वेख ला मामी ने मेरी मदद कर दी। मैं कहा अच्छा कोई नहीं मामी वास्ते दुआ करदे खुदा इन्हां नूं एक दिन बदलेगा, जरूर बदलेगा। ਤੇ ਵਾਕਈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਭ ਬਪਤਿਸਮਾ ਯਾਫਤਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। खुदावंद तू जो जिंदा खुदा है, तू जो मेरा मोहकम किला, मेरी चट्टान, मेरे छिपने की जगह है। खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंदा, आज दे कलाम ने जेड़े बच्चे तेरे खादम ने दिता खुदावंदा, इन्हां सब लई बाइसे बरकत ठहरे। रूहां दी तड़प रखण खुदावंदा, रूहां बचाउण खुदावंदा, ये तेरा काम करन बड़े जोर नाल खुदावंदा, क्योंकि हुण इन्हां दे वसीले खुदा तेरा काम होना है खुदावंदा। इन्हां बच्चियां नूं खुदावंदा बड़ी बरकत दे खुदावंदा, इसे तरह तेरा काम करदे रहन, तेरे नाम नूं जलाल दिंदे रहन, यीशु दे नाम। आमीन आमीन। तेरा कुएं में छुपा दें खुदावंद जी, जब तेरे कलमे को बोले तो खुदावंद जी वो नहीं, तू उसमें से होके बोल खुदावंद जी, ताकि खुदावंद जी हमें तू समझने वाली रूह बख्श खुदावंद जी, ताकि आज तेरे कलाम को खुदावंद जी हम अपनी जिंदगियों में खुदावंद जी संजीदगी से लेने वाले हों, उस पर अमल करने वाले हों खुदावंद जी। तो बड़ा मेहरबान खुदा है खुदावंद जी, तो हमसे प्यार करता है खुदावंद जी, तूने अपने बेटे बेटियों को चुना हुआ है खुदावंद जी। मैं दिल की खराइयों से खुदावंद जी तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद जी। हम जितनी देर भी खुदावंद जी तेरी हजूरी में बैठे खुदावंद जी, तेरी हमद सना करें खुदावंद जी, तेरे कलाम को सुने खुदावंद जी, तो हमें भर खुदावंद जी, हमें ले मस्सा से भर खुदावंद जी। जब अपने अपने घरों में जाएं तो खुदावंद जी तेरी ब्लेसिंग को रिसीव करके अपने साथ लेके जाएं खुदावंद जी। ओ लिखा ना बाबा तेरा शुक्र हो खुदावंद जी, अपने पास पानों के लिए खुदावंद। बहुत शुक्रिया। अभी आपने पास्टर विलियम पगानी से 5वां कलमा सुना था और अब ये जो कलमा है ये 6ठा कलमा है और 6ठा कलमा जो है तमाम हुआ और ये हमारी बेटी है नाइला। आइए बहन आप आकर खुदा मसीह में आप सबको सलाम। छठा कलमा फतेहमंदी का यूहन्ना 19 बाब और उसकी 30 आयत से तमाम हुआ। बस वो सिरका यीशु ने पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दी। आइए हम देखते हैं मुकाशवा में कि खुदा ने तमाम हुआ क्या कहा। तब उन बुजुर्ग मुकाशवा 5 बाब और उसकी 5 और 10 आयत से, तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा मत रो और देख यहूदा के कबीले का वो बर्रा जो दाऊद की असल उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया। और मैंने उस तख्त और 4 जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया सबा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7
आंखें थीं। ये खुदा की 7 रूहें जो तमाम रूहें ज़मीन पर भेजी गई। इसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से उस किताब को खोला। जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग उस बड़े के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में बरबत और ऊन से भरे हुए सोने के प्याले थे जो मुकद्दसों की दुआएं। और वो ये नया गीत गाने लगे तो ही उस किताब को लेने और उस मोहर को खोलने के लायक, क्योंकि तूने ज़िबा होकर अपने खून से हर कबीले, अहले ज़मीन, उम्मत और कौमों में से खुदा की लोगों को खरीद लिया। अजीजों, हमारे खुदा ने अपने कीमती खून से हमें खरीद लिया। तमाम हुआ और खुदा ने चलाया वो इसलिए नहीं था कि वो तकलीफ में था, वो चलाया इसलिए कि उसने बहुत सारा काम किया। आज हमें भी बहुत सारी रूहों को बचाना है। हमने इस ज़मीन पर खिदमत करनी है, अपने बदन का जलाल देना है, हर एक से मोहब्बत करनी है। जब हमारे दिल में मोहब्बत नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। जब हमारे दिल में रहम नहीं है, एक दूसरे को माफ़ करने का हमारे अंदर कोई जज्बा नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी खिदमत बेफायदा है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम खाली हैं मोहब्बत से। जब हमारे अंदर मसीह की मोहब्बत है तो हम खिदमत कर सकते हैं। मांगती मसीह के नाम से। और ये बहुत ज़रूरी है, फिर खिदमत को 4 चांद लग जाते हैं। सो ये बरकत है हमारे लिए। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ अपने जीवन साथी के लिए, जैसे दूसरे खादमों के लिए भी बरकत की बायस है, मेरे लिए भी मेरा साथी मेरे लिए बरकत का बायस है। सो गॉड ब्लेस यू जी। आपके सामने 6 कलमे बयान किए गए, 6 कलमे। इधर जरा देखिए, 6 कलमे बयान किए गए। अब जरा 3 को इधर करते हैं, 3 को इधर करते हैं, 3 इधर। पहला माफी का कलमा, दूसरा कौन सा है? फिरदौस, खुदा उनके पास जाने का कलमा। तीसरा कौन सा है? जरा जुबानी भी याद कर लिए ना, मोहब्बत का कलमा। इसको द वर्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोलते हैं, जिम्मेदारी का एहसास करना। यीशु इस कर्ब की हालत में भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं भूला। ये 3 कलमे मैं क्यों इधर कर रहा हूं और 3 इधर कर रहा हूं, जरा गौर से सुनिए मेरी बात को, जो मैं करने लगा हूं। तू ना कभी मर सकता है और ना कभी मरेगा, लेकिन यीशु मसीह इसलिए दाऊद की नस्ल से आया था ताकि हम सब का बदन में कफारा हो सके। कलमे का कफारा नहीं हो सकता, रूह का कफारा नहीं हो सकता, क्योंकि ना कलमा कफारा दे सकती है, ना रूह कफारा दे सकती है। खून बहाने के लिए बदन की जरूरत थी, और ये बदन यीशु मसीह को इसलिए उतारना पड़ा क्योंकि बदन वालों से गुनाह हुआ था। और जब बदन वालों से गुनाह हुआ तो बदन में आकर बदन में सजा को पूरी करना लाजमी था, वरना जज का फैसला चैलेंज हो जाता। पीछे था जो इल्जाम लगाने वाला, चैलेंज करने वाला इब्लीस, लूसीफर, जो खड़ा हुआ था। खुदा जहां गलती करेगा मैं वहीं उंगली उठाऊंगा, कहूंगा दिस इज रॉन्ग। लेकिन कलाम में लिखा है खुदा की अक्ल को किसने जाना है?